Good morning students. This is the second video lecture for the lesson Air Pollution and Control. In this second video lecture, we are going to study about the water pollution, its effects, its remedies. First of all, I want to start with this video, a case study. Okay. So first of all, we will discuss about the Taj Mahal. Lots of monuments we have, as I said earlier in my first video lecture. हमारे पास बहुत सारे monuments हैं, but we are habituated with Taj Mahal only. So we will discuss about the Taj Mahal. Damaging effect of air pollution on monuments. तो ये I want to elaborate. India's most famous tourist attraction is Taj Mahal. Is located in Agra. For the last few decades, it has been under severe threat due to the increasing air pollution. इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन. तो क्या हो रहा है, क्या कॉजेस है? द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस गैसेस कम डाउन विथ रेन एज एसिड रेन. दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जिसकी वजह से ये जो मॉन्यूमेंट है इसका क्या इफेक्ट हुआ है? एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट. द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. उसे हम मार्बल कैंसर बोलते हैं. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड फ्यूम्स की वजह से मथुरा में जो रिफाइनरी है, इवन द रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज है, तो इसकी वजह से क्या हो गया? देयर इज पोल्यूशन, देयर इज लिबरेशन ऑफ लॉट्स ऑफ एसिड्स and it is come in the form of acid, and due to this monument उसका क्या हो गया? It has the mechanism, उसका marble and the surface of this Taj Mahal get corroded. Suspended particles, matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. Marble का जो white जो था, shining part था, it becomes yellow. तो efforts to save the Taj, क्या किया है? The Supreme Court has taken several steps to save Taj. तो we can use this in our day-to-day life. क्या किया? Industry switched from burning fossil fuels to cleaner fuels like CNG and LPG. उसको switch कर दिया जो fossil fuels use कर रहे थे. तो in spite of that CNG and LPG को Supreme Court ने promote किया है, उन्होंने प्रीफर किया है. डीजल रन 3 व्हीलर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय CNG फ्यूल व्हील्स. तो दिल्ली में यू नो स्टूडेंट्स की CNG बेस्ड बसेस ही यूज़ की जाती है. अ नेचुरल गैस पाइपलाइन हैज़ बीन लेड टू सप्लाई क्लीन फ्यूल टू इंडस्ट्रीज इन आगरा. हेवी इन्वेस्टमेंट have been made in the Mathura refinery to reduce pollution. Pollution reduce करने के लिए मथुरा रिफाइनरी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड. 19,000 saplings are planted in the Taj Nature Walk. I think this is the best option. उन्होंने 19,000 saplings क्या किया है? वहाँ पे प्लांटेशन किया है. Major industrial units have installed pollution control devices. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की है. Then Agra Heritage Fund is set up to develop a solar power plant to meet the energy needs of the Taj Mahal. So this was the case study. I think you understood. ये first video lecture से related ही था, and it is very easy to understood. Now we will moving on the water pollution. Okay, now we are going to discuss about the water pollution. The contamination of water with harmful unwanted substances like domestic sewage, toxic industrial waste, chemicals like pesticides and fertilizers which cause harmful effects on both living object and non-living object is called water pollution. तो वाटर पोल्यूशन क्या है? इवन डोमेस्टिक सीवेज जो है, हम लोग जो करते हैं, सम पीपल, सम एनिमल्स दे आर टेकिंग बाथ, इवन हमारा जो किचन का वेस्ट है, वी आर जस्ट रिलीजिंग इट इन लेक में कर रहे हैं, रिवर में कर रहे हैं. सो इवन इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, दे आर जस्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट दे आर रिलीजिंग इट इन वाटर. तो वाटर बॉडीज, सो it makes water polluted, you know. The harmful and unwanted substances which contaminate that water are called as water pollutant. Air pollutant जैसा ही है. The pollutant, the substances which are pollute water, that are called as water pollutant. Pesticides, fertilizers, synthetic detergent, chemicals, oil and grease are water pollutants. So example of water pollutants में क्या आ रहा है? Pesticides भी आ रहा है. फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स इन फर्स्ट लेसन्स ऑलरेडी यू हैव लर्न, बट आई वांट टू जस्ट रिवाइज, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन. पेस्टिसाइड जो पेस्ट कंट्रोल है,
वी आर यूजिंग, हम फार्म में जो कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, तो उसका एक्सेसिव यूज़ है, फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ है, देन सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स, ऑयल, ग्रीस, दीज आर वाटर पोल्यूटेंट. द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स मेक द वाटर फाउल स्मेलिंग एंड बैड इन टेस्ट. वाटर में अगर पोल्यूटेड वाटर है तो उसका स्मेल भी बहुत बैड आएगा एंड आपका टेस्ट भी बहुत ख़राब आएगा. Now we will discuss about the what are the causes of water pollution. क्या causes हैं? Industrial sewage is the most important factor. If you will go in Uttar Pradesh, जहाँ से गंगा आती है, the river Ganga, we call it गंगा माँ. हम इतना means we are blessed with the गंगा माँ, ऐसा हम बोलते हैं. And if you will ask anyone, if you will go in history, तो ये जो रिवर गंगा वॉज द प्योरेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं तो हम उसको अमृत बोलते हैं. अमृत मीन्स क्या, जो पीते हैं तो वी विल बिकम इमॉर्टल, हम अमर हो गए, ऐसा मानते थे. इतना हमारे उसमें एपिक्स में उसको इतना इम्पोर्टेंस है एंड एक्चुअली इट वॉज. बट वी ह्यूमन बीइंग, हमने क्या किया है, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन करके वी मेड इट वेरी वेरी हार्मफुल. Okay, it's okay. So industrial sewage, industries of paper, textile, leather, paint produce waste containing highly toxic substances like lead, mercury, arsenic or their compounds. These are very dangerous metals, student, जिसकी वजह से डेथ ही होती है. ऐसे सब dangerous toxic substances these human beings are releasing in water bodies. एंड ये वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर रहे हैं, हम पे तो हो ही रहा, इट अफेक्ट्स ऑन अस. बट जो एक्वाइट एनिमल्स है, ड्रास्टिकली इट इज़ मेक वेरी आई कांट एक्सप्लेन. तो इनका ऑटोमेटिकली ये जो एक्वाटिक एनिमल्स है, देयर इज कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल्स. द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अंडरस्टूड, आई होप. Domestic sewage का sewage also play important role. Liquid waste from kitchens and toilets are discharged into rivers through sewer system causing water pollution. In spite of that, हम क्या कर सकते हैं? We are having lots of remedies and remedies I will discuss with it. Human activities, ये तो human activities ही था, जो भी था. Bathing of human beings and animals in or near lakes, rivers, etc. pollute the water bodies. In modern agriculture, large quantities of pesticides and fertilizers are used and it is ultimately making the water pollution. Excess of these inorganic chemicals find their way to water bodies, such results in water pollution. ये जो excessive use of pesticides है, fertilizers है, it seeps into the soil. Soil के नीचे water होता है and वो water pollution कर देता है. And I want to discuss with you one my experience, student. When I was just, I think, my childhood, तो मेरे childhood में whatever water I was used to drink, मेरा जो place है, तो वहाँ पे कैसे होता था, मेरा खुद का टाउन है एंड द प्लेस ऑफ मेरे मामा का घर है. सो बोथ द प्लेसेस में क्या होता था, मेरे पापा का जो टाउन है वहाँ का वाटर वॉज वेरी स्वीट, वो बहुत स्वीट था. बट द डेज पास्ट, जैसे चाइल्डहुड से मैं यंग स्टेज में आ गई एंड इन दैट टाइम पीरियड वो जो ड्रिंकिंग वाटर था इट बिकम्स हार्ड वाटर एंड इसका टेस्ट जो स्वीट टेस्ट था वो चला गया ड्यू टू दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. excessive use of this fertilizers and pesticides. Even groundwater is polluted due to excessive use of pesticides and weedicides. As I said, pesticides वो उसका जो diseases होता है प्लांट पे इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. weedicides किसके लिए यूज़ करते हैं, weeds होते हैं जो unwanted plant है क्रॉप में, उसको मारने के लिए weedicides are using. So these are the chemicals, you know. So automatically it seeps into the, वो नीचे चले जाते हैं, penetrate into the, नीचे चले जाके वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं. और क्या है, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ह्यूज टैंकर्स, इट वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन. आप अगर इसमें सी का, ओशियन का बात करते हैं हम, तो जो जिसमें से बोट में से लेके जाते हैं, शिप्स में से लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है एंड वहाँ पे भी वाटर पोल्यूशन करके वो एक्वाटिक बॉडीज़ को, वाटर को बहुत पोल्यूट करता है एंड इट्स वेरी हार्मफुल टू एक्वाटिक एनिमल्स.
The hot water may also act as pollutants with discharge in water bodies. Water bodies में अगर हम hot water release कर रहे हैं तो definitely that temperature could not bear by the aquatic animals. So that is also water pollution. Now we will discuss about the harmful effects of water pollution. का क्या harmful effects है? Let us discuss some harmful effects of water pollution. Effects on human health. Human health पे क्या हो रहा है? Polluted water can cause many diseases like cholera, dysentery, typhoid, gastro, jaundice, and diarrhea in human beings. This is also we have discussed in second lesson में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एंड फोबिया में हमने उसको डिस्कस किया है. तो दिस आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द दिस डिसीजेस जो वाटर के थ्रू हमें हो रहे हैं. हमें डिसेंट्री होती है, लूज मोशन होता है, वी हैव लॉट्स ऑफ डिसऑर्डर्स. Then eutrophication, washing away of fertilizers into water bodies cause increased growth of algae and other weeds in water bodies. This is called algal bloom. इससे क्या होता है, ये algae का एंड वीड्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है वाटर में एंड वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर लेता है एंड जो एक्वाटिक एनिमल्स है दे डोंट हैव द सफिशिएंट ऑक्सीजन. देन रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय algae, ये I have discussed. Death of algae would further reduces the amount of oxygen in the water. This is because microorganisms use oxygen for the decomposition of dead algae. Microorganisms ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है. ऑक्सीजन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड इन वाटर एंड अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स ऑन द एक्वाटिक एनिमल्स. उनका भी वहाँ पे डेथ हो जाता है. सो इट इज़ आई हैव शोन इन द फॉर्म ऑफ द इमेज. मैंने किया है पिक के फॉर्म में कैसे हो रहा है. इफेक्ट्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ, एक्सीडेंटली लीकेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम द बिग ऑयल टैंकर्स पोल्यूट्स द वाटर. एज आई सेड, जैसे लिया जाता है शिप्स में से लेके जाता है एंड एक्सीडेंटली अगर वो दैट ऑयल स्पिल्स तो वो भी बहुत वाटर पोल्यूशन करता है एंड एक्वाटिक बॉडीज़ को, एक्वाटिक एनिमल्स को इट कॉज टू द डेथ. सिंस ऑयल इज़ लाइटर दैन वाटर, कैसे हो रहा है, ऑयल क्या है, लाइटर दैन वाटर है. इट फॉर्म्स अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर सरफेस पे थिन फिल्म बन जाएगा इसका एंड सनलाइट नहीं आ पाएगा ऑफ वाटर विच इज़ कॉल्ड ऑयल स्टिक. ऑयल स्टिक हो गया. इट डजेंट अलाउ लाइट एंड एयर टू पेनेट्रेट इजीली इन द वाटर. इट किल्स थाउजेंड्स ऑफ मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप लोग पूछोगे कि मैडम कैसे हो रहा है, वाटर पे वो उसका कोट बनाया है. ड्यू टू दिस सनलाइट नहीं आ रहा है, देन एयर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली वो जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है. मोर ओवर द क्लीनिंग अप प्रोसेस ऑफ ऑयल स्लिक with detergent also causes a lot of damage of marine habitat. तो ये जो ऑयल को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है एंड उसकी वजह से ये केमिकल है, इसकी वजह से एक्वाटिक बॉडीज़ क्या हो जाता है, कॉज ऑफ डेथ. मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, रीजंस वी हैव डिस्कस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन. कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स और टेकिंग अ बाथ नियर वाटर बॉडीज वी हैव टू स्टॉप. Excessive use of fertilizers and pesticides should be controlled. I'm requesting all the students make awareness and I hope हम ऐसा कुछ कैंपेन अरेंज करेंगे, कैंपेन जिसकी वजह से फार्मर्स वुड हैव द अवेयरनेस कि ये जो एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं इट इज़ वेरी हार्मफुल. इन स्पाइट ऑफ दैट दे कैन यूज़ मैन्योर्स, यू नो, सो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग. Pollution control rules enforced by the government should be followed strictly. ये इट इज़ ऑन द पेपर ओनली, यू नो स्टूडेंट्स. ये जो सब चल रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो ऑन द पेपर होता है, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जो नहीं हो रहा है. ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशंस कंटिन्यू. सो एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वी हैव टू एडुकेट द पीपल कि जो ये जो पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है. Scientists have discovered a new microbe that would be useful to remove dye and other pollutants from a water body. This microbe, a bacteria, scientists ने discover किया है. I hope very soon we will use it. Water bodies, especially the lifeline of the Delhi, the river Yamuna. Now potable water. Potable water means what? Potable water means drinking water.
वाटर दैट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. इससे क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर बोलते हैं. वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द वाटर क्लीन. वाटर क्लीन करने के लिए बहुत सारी स्टेप्स यूज़ की जाती है. क्या है वो? द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. When the water reaches our homes, it needs to be cleaned by removing the impurities and killing disease causing microorganisms. वेरी सिंपल, वेरी इजी. पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? तो इट हैज़ स्पेसिफिक प्रोसेस. मेट्रो सिटीज़ में जनरली ये यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले क्या है? सेडिमेंटेशन टैंक. फर्स्ट इसका स्टेप जो है, आई एम गोइंग टू शो यू द इमेज ऑल्सो, पिक ऑल्सो आई विल शो यू. तो सबसे पहले है सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें सबसे पहले वाटर आता है. वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर अ डे. वाटर को एक दिन के लिए रखा जाता है. मोस्ट ऑफ द लार्ज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन. जो इम्प्योरिटी जो डिज़ोल्व नहीं हुआ है इम्प्योरिटीज़, वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा नीचे. एट द बॉटम ऑफ द टैंक सम लाइट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. जो लाइट इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर में रहेगी, बट जो जिसका डेंसिटी हाई है, वेट हाई है, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्या है? लोडिंग टैंक. वाटर इज पास्ड इन टू द लोडिंग टैंक. द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर मेड टू सेटल डाउन फास्टर बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स लाइक एलम. इट इज़ कॉल्ड लोडिंग. ये लोडिंग जो सेकेंड वाला है, उसमें क्या किया जाता है? सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज़ है, तो वो क्या हो जाती है? बाय यूजिंग केमिकल एलम दैट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल. तो उसकी वजह से वो जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है वो इसमें से क्या हो जाती है? पास आउट की जाती है. द थर्ड क्या है? फिल्ट्रेशन टैंक. द वाटर इज देन पास्ड इनटू द थर्ड पार्ट, दैट इज लोडिंग टैंक. Here water passes through the layers of sand, gravel and charcoal which filters the remaining lighter suspended impurities. तो इसमें से पास होके वो क्या हो जाता है? impurities one by one it reduces, it filter. Then it goes to the chlorination tank. Chlorination tank में जा रहा है. The water from the filtration tank is passed into the fourth part, that is chlorination tank. Here chlorine is added. Chlorine is a chemical. यहाँ पे ऐड किया जाता है. And it is used in a required amount only. You need to understand. And due to this, water will become a pure, but it is not harmful to us. Then storage tank, last part of this. Storage tank, after purification, the safe water is collected in big storage tank. It reaches our home through pipes. So this was the process by which, if we are getting the water from the municipality से अगर हमें मिल रहा है, तो it has the process. In this process, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो वाटर दिस पीपल हैव टेकन, इतना प्रोसेस करके दे आर सेंडिंग अस थ्रू पाइप्स एंड वी आर ड्रिंकिंग इट. दिस इज द इमेज. सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट इज द सेडिमेंटेशन टैंक. फॉर 24 आवर्स इट रिमेंस. यहाँ पे 24 आवर्स के लिए रहता है. जो क्या बोलते हैं, डेंस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे सेटल डाउन होती है. इट कम्स टू द लोडिंग टैंक, जहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहती है. कुछ केमिकल्स, एलम दिस केमिकल यूज़ करके वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी कम की जाती है. वहाँ से वो कहाँ आता है? फिल्ट्रेशन टैंक में आता है. वहाँ पे क्या होता है? सैंड होता है, चारकोल होता है, जिसमें से छोटी छोटी सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज़ है वो वहाँ से इट बिकम फिल्टर. वहाँ से वो क्लोरिनेशन टैंक में आता है. क्लोरिनेशन टैंक में क्लोरीन ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम प्योर. एंड यहाँ से वो स्टोरेज टैंक में पास किया जाता है, दैट इज़ प्यूरिफाइड वाटर. एंड विद हेल्प ऑफ पाइप it reaches to our houses. I think you understood, students. So this was the second video lecture. It was about the water pollution, reasons, remedies, potable water, water treatment plant, also various steps involved in the purification of river or lake water for drinking purposes. Yes, everything I have discussed with you, students. I hope you understood this video lecture also. If you understood, you enjoyed, please like, subscribe my channel, and the people who find it useful, just tell them subscribe my channel and watch my videos. Thank you for watching my video. Bye bye, take care.